students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is Adobe Photoshop CS6. In this chapter, we will learn starting Adobe Photoshop CS6, setting up the document Photoshop interface, toolbox in Adobe Photoshop CS6. You have already studied about Paint. It allows you to draw images and use it in various other applications on the computer. It also allows the user to edit pictures, but you can only modify simple pictures or drawings. If you want to edit your family photo, you cannot do that with Paint. In such a case, Photoshop comes to rescue. Adobe Photoshop CS6 is a popular image editing software that provides a work environment in which you can edit and modify images to make them professional looking images. In this chapter you will learn how to get started and how to use the interface. तो अभी तक हमने पढ़ा था कि किस तरीके से MS Paint में आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, अलग अलग इमेजेस को ऐड करके उनकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको कोई आपकी फैमिली फोटो को एडिट करना है तो उसके लिए MS Paint इज नॉट द ऑप्शन. द ऑप्शन इज द फोटोशॉप. तो फोटोशॉप आपको अलग अलग फोटोज को, एक्चुअल इमेजेस को एडिट करने के लिए हेल्प करता है. तो Adobe Photoshop CS6 इज द सॉफ्टवेयर जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, विच इज एन इंटरफेस जहां पर आप अलग अलग इमेजेस का फोटोशॉप करके एडिट कर सकते हैं. Starting Adobe Photoshop CS6. To start Photoshop CS6, step 1, click on Start menu. Step 2, then click on All Programs. Step 3, then click on Adobe. Step 4, then click on Adobe Photoshop CS6. Step 5, the Photoshop CS6 start screen will appear. अगर आपको Adobe Photoshop CS6 को ओपन करना है, सबसे पहले आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको Adobe पे क्लिक करना है, इसके बाद आप Adobe Photoshop CS6 पे जाएंगे, आपके सामने एक Photoshop CS6 का स्क्रीन अपीयर हो जाएगा. Setting up the document. In order to make your job easier, you should set up the document correctly from the beginning. This is same as planning in advance to avoid any irregularities in the project. For example, if you want to make a brochure, you may need to set up your document to be horizontal and double-sided. अब आपका document जिस भी टाइप का आपको document create करना है, उसके according आपको अलग अलग चीज़ों की configuration करनी होती है starting से, ताकि आपकी project में कोई irregularities ना आए. जैसे कि अगर आपको कोई ब्रोशर या पैम्फलेट बनाना है तो उसके लिए आपका डॉक्यूमेंट हॉरिजॉन्टल और डबल साइड होना चाहिए, ताकि आपके प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके की इनकंसिस्टेंसी ना शो हो. टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, स्टेप 1, सिलेक्ट फाइल, न्यू. This will open the document setup dialog box. Step 2, give the name to your document. Step 3, page size is the final size you want after all editing. Change the page size by typing in new values for width and height. Step 4, resolution is the number of pixels on a printed area of an image. The higher the resolution, the better the quality of the image. Set up the pixels for the image you are working on. Step 5, choose a color mode that will best fit your project. Step 6, choose the background, white, color or transparent. Step 7, when you have entered all your document settings, click OK. अब डॉक्यूमेंट को सेटअप करने के आपके कुछ स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले आप फाइल पे जाएंगे, उसके बाद आप न्यू पे जाएंगे, आपके सामने एक डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट का नाम देना है, नाम आप टाइप कर लेंगे, इसके बाद आपका जो भी पेज साइज होगा वो आपका फाइनल साइज होगा. सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद आपका वही साइज रहेगा. आप अपने पेज साइज को चेंज कर सकते हैं बाय टाइपिंग इन द न्यू वैल्यूज इन द विड्थ एंड लेंथ या हाइट वाले सेक्शन में जाके. फिर आपका रेजोल्यूशन आता है. रेजोल्यूशन इज द नंबर ऑफ पिक्सल्स, जितने पिक्सल्स का आपको इमेज चाहिए. जितना हायर आपका रेजोल्यूशन यानी कि जितना ज़्यादा आपके पिक्सल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आपकी इमेज होगी. फिर आपको अपना जो भी पिक्सल्स है इमेज का उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है जिस पे आप काम कर रहे हैं. इसके बाद आप बैकग्राउंड का कलर डिसाइड कर लेंगे. या आपका वाइट भी हो सकता है, कलरफुल भी हो सकता है या फिर ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है. वंस यू आर डन विद द कलर मोड, आपने कलर अपने बैकग्राउंड का सिलेक्ट कर लिया है, सारी अपनी डॉक्यूमेंट्स की आपने सेटिंग्स चेंज कर ली है, एंड में आपको ओके दबा देना है. Opening an image. If you want to load an image from your computer, then step 1, select file,
open. Step 2, navigate to the disk drive and to the folder where your image is saved. Step 3, choose the image file and click open. At this point, you must save your image under a different name so that you can always have the original image in that folder. To save your file, select File, Save As and type in the new name of the file in the dialog box. अब अगर आपको अपनी इमेज को ओपन करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप फाइल पे जाएंगे और आप ओपन को क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको नेविगेट करना है अपने डिस्क ड्राइव में, जिस फोल्डर में आपकी जो भी इमेज कहाँ पर सेव हो रखी है। इसके बाद आप अपनी इमेज फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। इस पॉइंट पे आपकी जो इमेज है जो सेव हो रखी है अलग नाम से, आप उसको दूसरे ओरिजिनल फोल्डर में या किसी और नाम से भी सेव कर सकते हैं ताकि आपको अगली बार आसानी से मिल जाए। इसके लिए अगर आपको अपनी फाइल को सेव करना है, आपको सिलेक्ट करना है फाइल के बाद आपको जाना है सेव एज पे। उसके बाद आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें आप एक नए नाम के साथ अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। फोटोशॉप इंटरफेस। द मेन पार्ट्स ऑफ द फोटोशॉप CS6 इंटरफेस आर, सबसे पहला है मेन्यू बार। The menu bar is located at the top of the screen. It contains all the main functions of Photoshop such as File, Edit, Image, Layer, Select, Filter, Analysis, 3D, View, Window and Help. Toolbar. The toolbar contains all major tools that are used for drawing, selecting and editing images in Photoshop. Workspace. The workspace is the blank canvas in the middle which provides the preview of the image you are being worked on. The image appears in this window when you open it from your computer. Image name. The name of that image you are working on will be at the top of the image window. Palettes. Palettes contain all the functions that help in editing and modifying images. By default, palettes are stacked together in groups. The most visible palettes are Color, Adjustments, Layers and History. If none of the palettes are visible, go to Window in the menu bar and choose the palettes you need. Palettes provide a platform of all the functions that can be used to edit, modify and monitor the images in Photoshop. The most commonly used palettes are, तो इससे पहले कि आप अलग अलग पैलेट्स के बारे में जानें, आपका जो एक फोटोशॉप इंटरफेस होता है उसमें सबसे पहले आपका मेन्यू बार आता है। मेन्यू बार में आपकी ये स्क्रीन के सबसे ऊपर होता है। सबसे पहले तो इसमें आपकी अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं फोटोशॉप के, जैसे कि फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सिलेक्ट, एनालिसिस, 3D, व्यू, फाइल, ये सारी चीज़ें आपकी मेन्यू बार में आती हैं। ठीक उसके बाद आपका टूल बार आता है जिसमें आपके सारे मेजर टूल्स होते हैं जो आप ड्राइंग करते हुए, सिलेक्टिंग करते हुए, आपको जब इमेजेस एडिट करनी होती हैं तो जिन चीज़ों की ज़रूरत आपको होती है वो आपके टूल बार में प्रेजेंट होती है। फिर आपका आता है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस आपका वो ब्लैंक कैनवस होता है जहां पर आप मेन्यू बार और टूल बार के अलग अलग बटन्स को यूज करते हुए आपकी इमेजेस को इंसर्ट और एडिट कर सकते हैं। फिर आपका आता है इमेज नेम। इमेज नेम होता है जिस भी चीज पे आप काम कर रहे होते हैं, आपकी उस विंडो के बिल्कुल टॉप पे आपकी उसी डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है। फिर आता है पैलेट्स। पैलेट्स में आपके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो आपको फोटोशॉप करते हुए हेल्प करते हैं। ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आपके कुछ फंक्शंस या कुछ पैलेट्स स्टैग्ड होते हैं, जैसे कि कलर, एडजस्टमेंट्स, लेयर्स एंड हिस्ट्री। अगर कोई भी पैलेट आपको नहीं दिख रहा है तो आपको सबसे पहले विंडो पे जाना है अपने मेन्यू बार पे और उसमें आपको आपका पैलेट चूज कर लेना है जिसकी भी आपको जरूरत है। जितने भी आपके पैलेट्स होते हैं वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए, जैसे कि एडिट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए। अब आपके पैलेट्स के भी बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं जो आप अलग अलग पैलेट्स यूज करते हैं। तो सबसे पहला आपका है कलर। The color palette displays the current foreground and background colors and RGB values for these colors. You can use the sliders to change the foreground and background colors in different color modes. You can also choose a color from the spectrum of colors displayed in the color ramp at the bottom of the palette. तो पहला पैलेट है आपका कलर। फोरग्राउंड यानी कि फ्रंट पे क्या कलर रहेगा, बैकग्राउंड यानी कि बैक साइड पे आपका क्या कलर रहेगा, वो आप इसी पैलेट से, कलर पैलेट से चूज करते हैं। आपके अलग अलग टाइप के मोड्स होते हैं। इसमें सैचुरेशन पॉइंट होता है, किसी भी कलर आपको कितना कलर डार्क चाहिए, कितना लाइट चाहिए, मीडियम चाहिए, ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंट होती हैं। प्लस आपका जो कलर रैम्प होता है बिल्कुल आपके बॉटम ऑफ द पैलेट में, आप उसको आगे पीछे करके डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा एग्जैक्ट शेड चाहिए आपके कलर का। दूसरा आता है स्वॉचेस। द स्वॉचेस पैलेट अलाउज यू टू चूज अ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर एंड ऐड अ कस्टमाइज्ड कलर टू द लाइब्रेरी। तो स्वॉचेस की मदद से आप फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कलर चूज कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके भी आप अपना खुद का कलर वहां पर बना सकते हैं।
Then comes your styles. The styles palette allows you to view, select and apply preset layer styles. By default, a preset style replaces the current layer style. You can use the styles in the palette or add your own using the create new style icon. फिर आपका आता है style palettes. किस तरीके का आपका लेयरिंग होगी, किस तरीके का आपका जो प्रोग्राम है वो दिखाई देगा, वो यहां से आप कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट एक प्रीसेट स्टाइल आपका रहता है जो कि आप रिप्लेस कर सकते हैं अपने करंट लेयर स्टाइल से. जो भी आपका स्टाइल आपको सिलेक्ट करना है वो आप अपने पैलेट में सिलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप नया ऐड भी कर सकते हैं. फिर आपका आता है एडजस्टमेंट्स. The adjustment layers palette allows you to apply an effect to a group of layers in Photoshop and then you can edit that effect later while preserving the original layers. फिर आपका आता है एडजस्टमेंट वाला सेक्शन. एडजस्टमेंट की मदद से आपके ग्रुप में जितने भी इफेक्ट्स हैं, लेयरिंग आपकी फोटोशॉप में हो रखी है, उसको आप सेव कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं ताकि बाद में जब आपको उसको यूज करना हो तो आप उसको यूज कर पाएं. Then comes history. The history palette stores and displays each action performed, allowing you jump to any recent page of the image alteration. The alterations should be created during the current work session. After saving or closing the document, the history palette clears all the contents. Each time you apply a change to an image, the new state of that image is added to the palette. It is important to know that once you click on any of the previous stages, all the changes that were made after it will be lost. फिर आपका हिस्ट्री आता है. हिस्ट्री में आपके वो सारे के सारी चीज़ें या सारे के सारे स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं जो आपने करंट स्टेज से पहले यूज़ करे हुए हैं. तो डायरेक्टली अगर आपको उन स्टेजेस पर जंप करना है तो हिस्ट्री वाले टैब में जाकर आप कर सकते हैं. बट यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड कि जैसे ही आप प्रीवियस स्टेज पे जाते हैं उसके बाद के जितने भी चेंजेस आपने करे हुए हैं प्रीवियस स्टेज पे जाते ही वो डिलीट हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं. Layers. The layers palette helps in organizing your work into distinct levels that can be edited and viewed as individual units. Every Photoshop CS6 document contains at least one layer. Creating multiple layers lets you easily control how your artwork is printed, displayed, and edited. The layers palette is often used while creating a document, so it is crucial to understand what it does and how to use it. तो आपका जो लेयर्स पैलेट होता है, आपकी जो अलग अलग लेयरिंग होती है उसको ऑर्गेनाइज करने में ये हेल्प करता है. आप मल्टीपल लेयरिंग्स भी कर सकते हैं. जितनी ज़्यादा आप लेयरिंग करते हैं आपका काम और आर्टवर्क उतना ही ज़्यादा सिस्टमैटिक होता जाता है. लेकिन उसको करने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं. आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ आप यूज़ करते हैं और उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है. सबसे पहला है लेयर विजिबिलिटी. द आई शोज दैट द सिलेक्टेड लेयर इज विजिबल. क्लिक ऑन और ऑफ टू सी और टू हाइड अ layer. Layer locking options, it is used to lock precise details of an image. For example, click the checkered square icon to lock transparency, click the brush icon to lock the image, click the arrow icon to lock the position, and click the lock icon to lock all options. Layer blending mode, it defines how the layer's pixels blend with underlying pixels in the image. By choosing a particular blending mode from the drop down menu, you can create a variety of special effects. Fill, it is used to type in a value or drag the slider so as to specify the transparency. Opacity, it is used to type in a value or drag the slider so as to specify the transparency of the entire layer. Layer lock, the icon shows when the layer is locked and disappears when it is unlocked. Double click the icon to unlock the layer. Layer options menu, it is used to display more layer options. Click the black triangle to display the options. New layer, duplicate layer, delete layer, layer properties, etc. Some of the options are presented as icons at the bottom of the layers palette. Link layers, it is used to link layers together. Layer styles, if a layer has a style, an F icon shows at the bottom of the layers palette. Click the little black triangle to see style options. Layer mask, it allows you to hide certain parts of the layer which can then be revealed by using the paint brush and the white paint color to expose portions of the layer. Layer set, it helps in organizing the images with multiple layers. Click the icon to create a folder for several layers.
Create new fill or adjustment layer. It helps in creating the same opacity and blending mode options as image layers and can be rearranged, deleted, hidden and duplicated in the same manner as image layers. Click the icon and select an option to create a new fill or adjustment layer. Create new layer. It is used to create a new layer. Delete layer, it is used to delete a layer. Select a layer in the layers palette and drag it to the trash can icon or select a layer and click the icon. सबसे पहला लेयर्स में आपका आता है लेयर विजिबिलिटी. लेयर विजिबिलिटी, अगर आपको पूरी की पूरी लेयर दिख रही होगी तो उसके साइड में आपको एक आई जैसा ऑप्शन आइकन दिख जाएगा. इसका मतलब कि लेयर्स आपकी विजिबल है. फिर आपका आता है लेयर लॉकिंग ऑप्शंस. लेयर लॉकिंग ऑप्शंस जो आपकी इमेजेस होती हैं उसकी प्रिसाइज डिटेल्स होती हैं या लॉक प्रिसाइज होता है. जैसे ही आपको ये लॉक ऑप्शन दिखाई देगा इसका मतलब आपका वो लेयर लॉक हो चुका है. उसके बाद आपका आता है लेयर ब्लेंडिंग मोड. लेयर ब्लेंडिंग मोड तब यूज होता है जब आपकी लेयर की पिक्सल्स को आपको ब्लेंड करना होता है विद द अंडरलाइंग पिक्सल्स इन द इमेज. तो तब आप इस लेयर ब्लेंडिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं. आप कोई भी एक पर्टिकुलर ब्लेंडिंग मोड को सिलेक्ट करते हैं आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू में से और उसके बाद आपके सामने एक वैरायटी ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स आती हैं जिसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. फिर आता है फिल. फिल में आप अलग अलग टाइप की वैल्यूज को ड्रैग कर करके उसमें आप चीजें डाल सकते हैं टू स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी. कितना ट्रांसपेरेंट चाहिए, कितना ओपेक आपको चाहिए लेयरिंग, वो आप यहां पर स्पेसिफाई करते हैं. फिर आता है ओपेसिटी. ओपेसिटी का मतलब होता है कि आप अलग अलग वैल्यूज को टाइप करके उसे ड्रैग कर सकते हैं कि कितना ज्यादा आपको ट्रांसपेरेंसी या कितनी ओपेसिटी आपको अपनी लेयरिंग में चाहिए. फिर आता है लेयर लॉक. लेयर लॉक होता है ये आपको एक आइकन शो हो जाएगा जब आपका लेयर लॉक्ड रहता है और जैसे ही आप इसको अनलॉक कर देंगे ये आइकन आपका डिसअपियर हो जाएगा. लेयर ऑप्शंस मेन्यू, इसमें आपका न्यू लेयर, डुप्लीकेट, डिलीट लेयर, लेयर की प्रॉपर्टीज जहां पर आपको जाननी होती है तो वहां पर आप लेयर ऑप्शंस मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी. फिर आपका आता है लिंक लेयर्स. लिंक लेयर्स आपको जब मल्टीपल लेयर्स को एक साथ जोड़ना होता है, लिंक करना होता है, तब यूज होता है. फिर आपका लेयर स्टाइल्स आता है. अगर आपकी लेयरिंग में कोई स्टाइल है तो आपको एक F आइकन शो होगा बॉटम ऑफ द लेयर्स पे. आपकी जो लेयर का पैलेट होता है आपको क्लिक करना है एक ब्लैक ट्रायंगल पे अगर आपको अलग अलग स्टाइल्स को देखना है. फिर आपका आता है लेयर मास्क. या आपको कुछ पार्ट्स आपकी लेयर के जो आपको हाइड करने होते हैं, छुपाने होते हैं, तब यूज होता है, जो कि आप रिवील कर सकते हैं अगर आप पेंट ब्रश को यूज करेंगे व्हाइल पेंटिंग द कलर टू एक्सपोज दोज पोर्शंस व्हिच यू हैव हिड. लेयर सेट, यह आपको हेल्प करता है अलग अलग जो आपकी इमेजेस होती हैं उनको मल्टीपल लेयर्स में ऑर्गेनाइज करने के लिए. जैसे ही आप आइकन पे क्लिक करते हैं टू क्रिएट अ फोल्डर फॉर सेवरल लेयर्स. फिर आपका आता है क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर. इसमें आपको सेम ओपेसिटी, ब्लेंडिंग मोड और किसी भी चीज का बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी चाहिए होता है. रीअरेंज करना है, डिलीट करना है, हाइड करना है, डुप्लीकेट करना है बिल्कुल सेम मैनर में. तो यहां पर आप आइकन पे क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है क्रिएट अ न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर पे. क्रिएट अ न्यू लेयर, यहां पर आपको नई लेयर क्रिएट करनी होती है तो इस ऑप्शन का एक्सेस आप करते हैं. फिर आपका आता है डिलीट लेयर. इसमें आपको कोई भी लेयर को डिलीट करना होता है तो आप इसका यूज करते हैं. आप एक लेयर को सिलेक्ट करते हैं, लेयर्स पैलेट में जाते हैं, ड्रैग करते हैं उस लेयर को ट्रैश कैन आइकन तक, या फिर आप उस लेयर को सिलेक्ट करिए और आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो लेयरिंग डिलीट हो जाएगी. Toolbox in Photoshop CS6. The Photoshop toolbox contains all necessary tools that are required to draw, edit, modify, select and monitor the images in Photoshop so as to create professional looking images. Some tools in the toolbar have additional hidden tools. These tools have small black triangles in the right hand corner. To view the hidden tools, click and hold down on any tool that has a gray triangle in the corner. If you are a new user of Adobe products, you should keep in mind that you might not need to use all of the tools. In this section, we will learn some basic tools that are used in Photoshop. अब आपका आता है टूल बार. आपके Photoshop CS6 में अलग अलग टूल बार्स में आपके ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि आपका ड्रॉ ऑप्शन होता है, एडिट होता है, मॉडिफाई, सिलेक्ट, मॉनिटर द इमेजेस. ये सारी चीज़ें जो आपको फोटोशॉप करते हुए यूज़ करने में आ सकती हैं, ज़रूरत हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपके टूल बार में प्रेजेंट होती हैं. इसके अलावा आपके कुछ एडिशनल टूल्स होते हैं जो हिडन होते हैं.
छोटे से ब्लैक ट्रायंगल होते हैं आपके राइट हैंड कॉर्नर में, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके एडिशनल हिडन टूल्स भी आपको दिख सकते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं आपके फोटोशॉप CS6 के प्रोडक्ट्स को, तो यू हैव टू मेक श्योर कि सारे के सारे टूल्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। जितने टूल्स की आपको जरूरत है उतने ही टूल्स की आप यूज करिए, बाकी सबको मत यूज करिए। Next comes selection tools. The selection tools are used to select the objects on the canvas in different ways so as to edit them using some editing tools. Some common selection tools used in Photoshop are Move. It is used to select and move objects on the page. Click the tool button, then click on any object on the page you wish to move. Marquee. This tool helps in selecting an object by drawing a rectangle or an ellipse around it. Click the tool button. Choose a rectangular or an elliptical marquee. Drag the marquee over the area of the image you wish to select. Lasso. It is used to select an object by drawing a freehand border around it. Click the tool button. Drag to draw a freehand border and around the area of the image you wish to select. Magic Wand. It helps in selecting all objects in a document with the same or similar fill color, stroke weight, stroke color, opacity or blending mode. By specifying the color range or tolerance, you can control what the Magic Wand tool selects. Crop. It is used to chop down unwanted parts of an image. Click the tool button, then click and drag the tool over the part of the image that you want to keep. Resize the selected area, dragging the squares at the sides and corners. Click the return or enter key when your crop box is sized correctly. Eyedropper. It takes color samples from colors on the page and displays them in the color boxes. Select the tool, click on the color in the image you wish to sample. The color box will display the color. Path selection. It helps in selecting paths and path segments. Select the tool, click anywhere on the path. अब आपके कुछ tools present होते हैं Photoshop CS6 में। सबसे पहला है आपका Move. मूव बटन को आप क्लिक करते हैं टू सिलेक्ट एंड मूव द ऑब्जेक्ट्स इन अ पेज। आपके एक पेज में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको सिलेक्ट करके मूव करने में आपको ये टूल हेल्प करता है। आपको टूल बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को पेज पर जहां पर भी मूव करना है आप कर सकते हैं। फिर आपका आता है मार्की। इसमें आप ऑब्जेक्ट के आसपास एक एलिप्स का मतलब होता है एक सर्कुलर, थोड़ा सा ऐसा आपका ओवल टाइप का सर्कल होता है, एलिप्टिकल पाथ होता है। सर्कुलर पैटर्न आप ऑब्जेक्ट के आसपास ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद उसको सिलेक्ट करके आप उसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। लैसो आता है। लैसो भी आपका थोड़ा थोड़ा मार्की की तरह होता है, बस डिफरेंस ये होता है मार्की में आप एक एलिप्टिकल पाथ बनाते हैं, सर्कुलर पाथ बनाते हैं। लैसो में आपकी एक फ्री हैंड ड्रॉइंग होती है, फ्री हैंडली आप ऑब्जेक्ट के आसपास ड्रॉ कर सकते हैं, उसको कट करके कहीं और पेस्ट करने के लिए। मैजिक वैंड। मैजिक वैंड में आपके अलग अलग स्ट्रोक कलर्स होते हैं, आपके एडिटिंग ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा ओपेसिटी, ब्लेंडिंग मोड, ये सारी चीजें आप एक मैजिक वैंड से एक्सेस कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग द कलर, रेंज, टॉलरेंस। यहां तक कि आपके जो टूल सिलेक्ट करने हैं वो भी आप मैजिक वैंड से कर सकते हैं। फिर आता है क्रॉप। आपकी इमेज का वो पार्ट, अनवांटेड पार्ट जो आपको नहीं चाहिए, वो आप क्रॉप वाले बटन से क्रॉप करके हटा सकते हैं। देन कम्स योर आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर जो होता है, इट टेक्स कलर सैंपल्स फ्रॉम कलर्स ऑन द पेज। तो आपके जितने भी सैंपल्स होते हैं आपके एक पेज में, उनको पिक करता है और डिस्प्ले करता है उन्हें कलर बॉक्सेस में। आपको आपके टूल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है आपकी जो भी आपकी इमेज है उस पर जिसका भी आपको सैंपल चाहिए। फिर आपका आता है पैथ सिलेक्शन। पैथ सिलेक्शन में आपकी जितनी भी सिलेक्टिंग पाथ्स होती हैं, पाथ सेगमेंट्स होते हैं, वो आपको सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। आपको अपने टूल को सिलेक्ट करना है और आपके पाथ के कहीं भी किसी भी एरिया पे आप क्लिक कर सकते हैं। Alteration tools. Alteration tools are used to do some minor alterations or changes in the image. Some commonly used alteration tools are Healing Brush. It helps in correcting small blemishes in scanned photos. Select the tool, hold down the Alt key and left click on the base color you need to heal. Then left click over the blemish. Brush. It helps in drawing brush strokes of different thicknesses and colors. Select the tool, then click on the selected area, drag to draw lines. Use the options bar to change the brush mode, opacity and flow. Clone stamp. It takes a sample of an image and applies over another image or a part of the same image. Select the tool, hold down the Alt key and left click on a certain point of the document where you want to start your copy point.
Then put your mouse over whatever part of the new document you want the picture to go to. Hold down the left mouse button and drag the mouse across the page to copy the picture. Art History Brush. It is used to paint over an image using the source data from a specified history state or a snapshot. Select the tool, specify the brush, blending mode, opacity, style, area and tolerance. Eraser. It helps in removing part of an existing path or stroke. You can use the erase tool on paths. Text can only be erased when rasterized. Select the tool, click on the part of the image you wish to erase, drag to erase pixels. Paint bucket. It applies the color fill to a selected part of the image or to an entire layer. Select a layer you wish to apply the paint bucket to. Click the tool button, click on the starting point and click the area you wish to fill. Blur. It is used to blur the sharp edges of an image. Select an area where you wish to apply the tool. Click the tool button and choose the brush, mode and strength. Drag the brush along the edges. फिर आपके आते हैं ऑल्टरेशन टूल्स. ऑल्टरेशन का मतलब होता है जब आपको कुछ माइनर चेंजेस करने होते हैं. ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, बदलाव करना. तो उसमें आपके अलग अलग टूल्स होते हैं. सबसे पहला आपका है हीलिंग ब्रश. आपके फोटो में कुछ हल्के हल्के ब्लेमिशेस होते हैं, हल्के हल्के से आपके स्पॉट्स होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, बहुत माइनर होते हैं. उनको आपको हटाना होता है तो आपको हीलिंग ब्रश का ऑप्शन एक्सेस करना होता है. इसके लिए आप टूल को सिलेक्ट करेंगे, आप ऑल्ट की को होल्ड करेंगे, नीचे की तरफ लेफ्ट क्लिक करेंगे आपके बेस कलर पे जो आपको हील करना है. देन आपको लेफ्ट क्लिक करना है आपके ब्लेमिश के ऊपर जहां पे आपका स्पॉट है. फिर आपका ब्रश आता है. ब्रश जो होता है आपके जो स्ट्रोक्स होते हैं आपके ब्रशेस के, थिकनेस होती है, कलर्स होते हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं. सिलेक्ट द टूल. उसके बाद आपको अपने सिलेक्टेड एरिया पे क्लिक करना है, ड्रैग करना है लाइंस ड्रॉ करने के लिए. और अलग अलग ऑप्शंस बार की मदद से आप अपने ब्रश का मोड भी चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी और कलर को भी बदल सकते हैं. फिर आता है क्लोन स्टैम्प. क्लोन स्टैम्प जो होता है आपकी इमेज का एक सैंपल ले लेता है, अप्लाई करता है उस दूसरी इमेज के ऊपर और या फिर एक पार्ट ऑफ द इमेज के ऊपर. और फिर आप सिलेक्ट करते हैं आपके टूल को, ऑल्ट की प्रेस करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं ऑन अ सर्टेन पार्ट ऑफ द इमेज या डॉक्यूमेंट जहां पर भी आप उस कॉपी वाले पॉइंट को देखना चाहते हैं. उसके बाद आप अपने माउस को आपके न्यू डॉक्यूमेंट के किसी भी पार्ट के ऊपर लेकर जाते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि पिक्चर आपकी दूसरी रिप्रेजेंट हो जाए. वहां पर आप अपने लेफ्ट बटन को होल्ड करते हैं और ड्रैग करते हुए अपने माउस को उस पेज के ऊपर लेकर जाते हैं. फिर आता है आर्ट हिस्ट्री ब्रश. ये आपका जो होता है ये पेंट ओवर द इमेज यूजिंग द सोर्स डेटा. आपका जो सोर्स डेटा होता है उसको यूज करते हुए आपकी इमेज को ये पेंट करता है एक स्पेसिफाइड हिस्ट्री या फिर एक स्नैपशॉट की मदद से. आप अपने टूल को सिलेक्ट करते हैं, ब्रश स्पेसिफाई करते हैं, ब्लेंडिंग मोड, ओपेसिटी, स्टाइल, ये सारी चीजें आप स्पेसिफाई करते हैं. फिर आता है इरेजर. आपको कोई भी पार्ट आपकी इमेज का डिलीट करना है, इरेज करना है तो आप इरेज कर सकते हैं आपका रिमूविंग पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पाथ या फिर स्ट्रोक. इसके लिए आप टूल सेलेक्ट करते हैं, किसी भी पार्ट पे जहां भी आप डिलीट करना चाहते हैं वहां डिलीट करते हैं और ड्रैग करते हैं टू इरेज द पिक्सेल्स. फिर आता है पेंट बकेट. ये आपका हेल्प करता है आपको कलर फिल अप्लाई करने के लिए आपके किसी भी सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज में या फिर एंटायर लेयर पे भी. आप अपनी सबसे पहले लेयर को सिलेक्ट करते हैं जिसपे आपको कलर चाहिए, उसके बाद आप टूल बटन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आप स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करने के बाद उस एरिया पे क्लिक करते हैं जहां पर आपको पूरा का पूरा कलर फिल चाहिए. फिर आता है ब्लर. आपकी इमेजेस के जो शार्प एजेस होते हैं उनको हल्का सा ब्लर आउट करने के, लाइटन करने के लिए यूज किया जाता है. टूल बटन पे आप क्लिक करते हैं, ब्रश को चूज करते हैं, मोड सिलेक्ट करते हैं, स्ट्रेंथ सिलेक्ट करते हैं और ड्रैग करते हुए एजेस को ब्लर करना शुरू कर देते हैं. Drawing tools. Drawing tools are used to draw objects or add text to the objects on the canvas. Some drawing tools are type. It helps in typing text on a page. Every time you click the type tool on a new portion of the page, a new layer will be created. Select the type tool, click on the page and begin to type. You can specify the font and size in the options bar. You can also resize and transform the text box by dragging the squares at the sides and corners. Use the move tool to move the text on the page. Pen. It helps in drawing smooth edged paths. Select the tool, click on the page and drag to draw a path. Click and drag the anchor points to modify the path. Line shape. It helps in drawing a straight line. Other shapes that are hidden in this tool are rounded rectangle tool, ellipse tool, polygon tool, line tool and custom shape tool. Select the tool, click and drag on the page to draw a line. अब आपके आते हैं ड्राइंग टूल्स.
इसमें आपके पास सबसे पहले आता है टाइप। आपको कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है तो आप इस टूल का एक्सेस लेते हैं, आपको क्लिक करना है सबसे पहले तो टाइप टूल पे, आपके नए पोर्शन ऑफ द पेज पे एक नया लेयर आपके सामने क्रिएट हो जाएगा। आपको आपका जो भी टूल का टाइप है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, पेज पे क्लिक करेंगे और टाइप करना शुरू कर देंगे। टाइप करने के बाद आप अपने ऑप्शंस बार में जाके आपके टेक्स्ट का साइज भी रीसाइज कर सकते हैं और अलग अलग चीजों को ड्रैग करते हुए अपने टेक्स्ट को आप शिफ्ट भी कर सकते हैं साइज या फिर कॉर्नर्स पे। उसके बाद आप मूव टूल करेंगे तो आपके टेक्स्ट को आप आपके पेज के किसी भी पोर्शन पर मूव कर सकते हैं। दूसरा आता है पेन। पेन की मदद से आप स्मूथ एज्ड पाथ क्रिएट कर सकते हैं, ड्रैग करेंगे, टूल को सिलेक्ट करेंगे और एक लाइन सी आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आता है लाइन शेप। जब आपको स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी होती है तो ये टूल यूज होता है। कुछ आपकी ऐसी शेप्स होती हैं जो हिडन होती हैं, जैसे कि राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगन टूल, लाइन टूल और कस्टम शेप टूल। तो आप इसके लिए आप टूल पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे आपके पेज पे जहां पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। इसके अलावा आपके कुछ एडिशनल टूल्स भी होते हैं। देयर आर सम एडिशनल टूल्स यूज्ड इन फोटोशॉप। Hand. It allows you to move around within the image. Select the tool, click on the spot on the page, hold the mouse button down, drag to move in the area. Magnify. It helps in magnifying or reducing the display of any area in your image window. Select the tool, choose zoom in or zoom out in the options bar. Click on the area of the image you wish to magnify or reduce. तो आपके कुछ और एडिशनल टूल्स होते हैं। हैंड वाला टूल जो होता है आपकी इमेज के अंदर आप कहीं पर भी स्पॉट करेंगे आपके पेज पे, उसको आप कहीं पर भी फिर उसके अंदर मूव कर सकते हैं। दूसरा आता है मैग्नीफाई। आपको आपका डिस्प्ले इंक्रीज करना है, रिड्यूस करना है तो जूम इन जूम आउट ऑप्शंस होते हैं आपके ऑप्शंस बार में। आप वहां पर जाके अपनी जो भी इमेज होती है या आपका फोटोशॉप का पेज होता है उसको आप मैग्नीफाई कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। Color boxes and modes. The color boxes represents the color selected for foreground and background. The foreground color appears in the upper color selection box and represents a color that is currently active. The background color appears in the lower box and represents an inactive color. To change the foreground color, click the upper color selection box in the toolbox. To change the background color, click the lower color selection box in the toolbox. To reverse the foreground and background colors, click the switch colors icon, the arrow in the toolbox. To restore the default foreground and background colors, click the default colors icon, the little black and white boxes in the toolbox. तो आपके जो color boxes होते हैं आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के क्या करंट कलर्स हैं वो आपको दिखाते हैं। तो आपका जो कलर बॉक्स होता है वो आपका फोरग्राउंड बैकग्राउंड का कलर रिप्रेजेंट करता है। फोरग्राउंड का कलर जो है आपके सिलेक्शन बॉक्स के अपर पार्ट में होगा और बैकग्राउंड का उसी सिलेक्शन बॉक्स के लोअर पार्ट में होगा जो कलर आपने करंटली एक्टिवेट कर रखा है। अगर आपको फोरग्राउंड का कलर चेंज करना है तो आपको अपर कलर सिलेक्शन बॉक्स में जाना है टूल बॉक्स के। अगर आपको बैकग्राउंड का चेंज करना है तो आपको लोअर कलर सिलेक्शन बॉक्स में जाना है टूल बॉक्स के। अगर आपको स्विच करना है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कलर रिवर्स करना है तो उसके लिए आप क्लिक करेंगे स्विच कलर्स आइकन पे, एक एरो होगा आपके टूल बॉक्स पे। उसके बाद अगर आपको डिफॉल्ट जो आपका बाय डिफॉल्ट फोरग्राउंड का बैकग्राउंड का कलर था वो आपको रिस्टोर करना है तो उसके लिए आप डिफॉल्ट कलर्स आइकन पे जाएंगे। छोटा सा लिटिल ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्स होगा आपके टूल बॉक्स में, उसे क्लिक करने से आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का कलर जो बाय डिफॉल्ट था वो चेंज हो जाएगा। To revise, Adobe Photoshop CS6 is a popular image editing software that provides a work environment in which you can edit and modify images to make them professional looking images. The toolbar contains all major tools that are used for drawing, selecting and editing images in Photoshop. Palette contains all the functions that help in editing and modifying images. The layer palette helps in organizing your work into distinct levels that can be edited and viewed as individual units. The color boxes represents the color selected for foreground and background. तो Adobe Photoshop CS6 आपका वो एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपनी फोटोज को, आपकी फैमिली फोटो होती है, फ्रेंड्स फोटो होती है, किसी की भी फोटो होती है, उसको आप एडिट कर सकते हैं। आपके फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। अलग अलग आपके टूल्स होते हैं जिनको यूज करते हुए आप अपनी पिक्चर्स को रीसाइज कर सकते हैं, ब्लेमिशेस उसके हटा सकते हैं, एजेस को सॉफ्ट कर सकते हैं। बहुत सारे आपके लेयरिंग ऑप्शंस होते हैं, मॉडिफाइंग ऑप्शंस होते हैं जिसकी मदद से आप फोटोशॉप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आप खुद से करिए।